Hello everyone, I am Rakhi Nandan. Welcome to my channel. Today we are going to start our new topic for criteria of similarity in class 10 CBSE NCERT book we are following. So here, without delay, I will start my topic. In our first video, I have discussed about what is similarity and what are the two conditions for any two triangles or any two polygons to be similar were. First condition, so here basically we are studying triangles. So let's focus directly on the triangles. I have two triangles, triangle ABC, triangle DEF. So first condition was all the angles should be equal to each other. Basically आपके पास जो corresponding angles हैं that should be equal. Angle A should be equal to angle D, angle B should be equal to angle E, and angle C should be equal to angle F. This was the first condition, and the second condition was the corresponding sides of the triangles, the ratio of corresponding side of the triangle should be equal. The ratio of corresponding sides means दो आपको यहाँ से correspondency का you have got the idea. Corresponding sides की ratio equal है आपके पास. So यहाँ से if you are taking one side of triangle first, then you have to take all the three sides of that particular triangle first. So here I am taking AB in numerator. So from here the corresponding side is DE. This is the ratio of the corresponding sides. One side, other side. If I will take here BC, so इधर से if you are taking BC, वहां से you will take EF. The लेफ्ट साइड AC, उधर से लेफ्ट ओवर है आपके पास DF. दिस रेशियो शुड बी इक्वल. इसका जो आंसर आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, दैट शुड बी इक्वल. आई डिस्कस दिस टॉपिक इन माई फर्स्ट वीडियो. यू मे गो बैक एंड check the first part of this chapter, and where K was your any real number. Real, basically it can be a fraction also, it can be any real number. So these were the two basic condition or necessity of any two triangles to be similar. So today I will modify these two conditions into one. Like if one condition is given, how we will prove the second condition, so that only one condition will be sufficient enough. So before moving that, you need to know what is the basic difference between congruency and similarity. There is a small difference between congruency and similarity. I covered this whole. You may go back and check it first. Today I will take the theorems from our book, and let's move forward towards our theorem from this chapter. Now moving towards our theorem 6.3. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and hence two triangles are similar. So यहाँ पे क्या केस है आपके पास? You are given only one condition and the condition is corresponding angles are equal. आपको एक condition given है, two triangles में corresponding angles equal है. आपको शो करना है that their corresponding sides are in same ratio, जो second condition थी आपकी. And if you will prove that, तो फिर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी. तो वही आपको प्रूव करना है. अगर आप ये शो कर देते हैं corresponding sides are in same ratio and hence two triangles will be similar. So let's start. We will consider two triangles. दो triangles आपने consider किए हैं. Separately you have taken two triangles. One is triangle ABC and the other one is triangle DEF. Now what you will do? We will use the concept of congruency here, and for that I will make some construction. First let's mention what is given to you. Given is corresponding angles are equal. So let's make the corresponding angles equal. These signs are for correspondency. Angle A angle D के इक्वल है, एंगल B आपका एंगल E के इक्वल है, एंगल C आपका एंगल F के इक्वल है. So all the three angles are equal to corresponding angles. Now I will do some to prove. आपको जो निकालना है पहले उसे मेंशन करते हैं. आपको प्रूव करना है corresponding sides are in
सेम रेशियो। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अभी हमने डिस्कस किया था, कैसे मेंशन करते हो आप, ए बी इधर से लिया है तो उधर से साइड आएगा, डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये आपको प्रूव करना है। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू प्रूव दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। Triangle ABC is similar to triangle DE. If you remember the sign, ये साइन हमने आपको बताया था, कांग्रुएंसी में हम यूज करते थे ये साइन, और यहाँ पे यूज करेंगे सिर्फ सिमिलैरिटी के लिए वन वेव। सो नाउ डू द कंस्ट्रक्शन। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। इफ यू प्रूव दैट देन बाय कंडीशन ऑफ योर सिमिलैरिटी ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। दिस विल बी प्रूव्ड बाय डिफॉल्ट। सो आपको फोकस करना है दिस पार्ट पे। सो लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, लुक हियर योर ए बी इज स्मॉलर देन डी ई। वन मोर थिंग, यू इफ यू वांट टू मेंशन इट यू कैन मेंशन दैट दिस इज लेस देन 1, बट दैट इज नॉट सो रिक्वायर्ड। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड टू ट्रायंगल्स बाय योरसेल्फ, सो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू चूज इट। आपने ए बी छोटा लिया है, डी ई को आपने बड़ा लिया है, तो क्या करेंगे, डी ई में से ए बी के साइज के जितना वी विल कट दिस। वी विल जो ए बी है आपका उतने साइज का आपने इस पूरे सेक्शन में से एक स्मॉल सेक्शन कट कर लिया है, ए सी के जितना डी क्यू कर लिया है। सो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, यहां से कंस्ट्रक्शन किया आपने ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी is equal to dq. I hope you get it. ये AB था उतने ही साइज का DP कट किया, AC था उतने ही साइज का DQ कट किया। नाउ इन ट्राइंगल अप्रूव करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर दिया है, लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रूफ। इन ट्राइंगल जो आपने कट की है उस ट्राइंगल को हम फोकस में करते हैं। इन ट्राइंगल DPQ, ट्राइंगल DPQ में आपके पास क्या है, DPQ एंड ट्राइंगल ABC। अब हम कंपेयर करेंगे ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DPQ के साथ। दोनों में सिमिलैरिटी देखिए क्या क्या है। फर्स्ट सिमिलैरिटी इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, गिवन है आपको, यस, एंगल A D के इक्वल है। अब सेकेंड थिंग आपने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू DP, AB और DP इक्वल है, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। थर्ड थिंग इज AC इज इक्वल टू DQ। एक ये चीज है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो चीजें आपके पास। सो यहां से बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंस, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम योर क्लास 9, तो क्या कहती थी, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। सो हियर बाय SAS congruency, I hope you get it, by SAS side angle side है इक्वल है ना, दो साइड्स उनके बीच का एंगल। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DPQ। ये समझ आया आपको, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DPQ दोनों congruent है। एंड congruency रूल क्या कहता है, all the angles and all the sides both things are equal। so यहां से क्या निकल के आया आपके पास, यहां से निकल के आया आपके पास जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल P। एंगल जो C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल QY बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आपने यूज किया है क्लास 9 में बहुत अच्छे से। सो अब ये जो एंगल था ये इक्वल हो गया B के, ये जो एंगल था इक्वल हो गया Q के। सो यहां से एक और चीज क्या हुई आपके पास, आपने नोटिस किया एंगल ये B के इक्वल था एंगल P, अब E के भी इक्वल हो गया, कैसे, क्योंकि B और E म्यूचुअली इक्वल टू ईच अदर। सो यू विल मेंशन दिस दैट एंगल P will become equal to angle E. Why? Because angle P is equal to angle B is equal to angle E, तीनों ही हो गए इक्वल आपस में। सो यहां से if this is the case you consider
तो आपको याद होगा, आपने किया था क्लास 9 में, PQ becomes parallel to EF. This thing implies that, I will mention the red pen so that it will be clear. PQ will become parallel to EF. समझ आया आपको कैसे? Corresponding angles नहीं हो गया, ये दो parallel line, this is your transecting line, angle P and E are equal, so it will become your corresponding angles, and if corresponding angles are equal then lines are parallel. So यहाँ से PQ parallel to EF हो गया. अब इन ट्राइंगल DEF ट्राइंगल में एक साइड दूसरी साइड के आपने पैरेलल निकाल दिया है, तो बीपीटी को याद कीजिए. रिमेंबर बीपीटी क्या कहता है? ट्राइंगल में एक साइड पैरेलल हो तो साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी. सो यहां से आई विल इरेज अ स्मॉल पार्ट सो दैट आपको यहां से स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए. Till here you can pause the video to write it down. I am erasing it to get some space. Now in triangle DEF, in triangle DEF, PQ is parallel to EF. So you can apply BPT here. So you will mention it. Using BPT, sides will be in proportion. And proportionality आपने कैसे लिखी थी? दो तरीके से लिखी थी. फर्स्ट टाइम हमने लिखा था DP upon PE is equal to DQ upon QF. एक तो ये लिखा था आपने. इसी को हमने मॉडिफाई किया था by adding 1. First we reciprocated it, then we added, and again by reciprocating हमने एक और चीज निकाली थी. We will not deeply explain here because we have done it earlier. We will use directly result. वो क्या लिखा था आपने? वो लिखा था DP upon DE. It was a kind of question over there, but here I will use the direct result. उधर से आपने लिखा था DQ upon QF. In second video I covered it. So if you don't get it, how did I write? You may go back and check. DP upon DE is equal to DQ upon QF. DF पूरा पार्ट हमने लिया था, इधर से DE लिया है, यहां से हमने लिया था DF. पूरा पार्ट हमने कंसिडर किया था, रेसिप्रोकेटिंग एंड बाय एडिंग 1 एंड देन अगेन रेसिप्रोकेटिंग. इसको यूज करते हैं अब यहाँ पे. कैसे यूज करोगे आप? यूज योर दिस कंस्ट्रक्शन पार्ट अगेन. डीपी किसके इक्वल है? सो आप मेंशन कर दोगे यूजिंग कंस्ट्रक्शन. डीपी को रिप्लेस किससे करोगे? AB से. AB अपॉन DE इज इक्वल टू DQ किसके इक्वल है? AC अपॉन DF. क्या ये आपका जो प्रूफ का कुछ पार्ट नहीं आ गया? ये और ये इक्वल आ गया है दो आपस में आपके पास. यस. AB upon DE is equal to AC upon DF. सिमिलरली एक पार्ट प्रूव हो गया है, बट पूरा पार्ट तो आपका प्रूव नहीं हो रहा है. पूरे के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड टू प्रूव द होल रेशियो. तो आपको BC अपॉन EF चाहिए. तो आप कैसे करेंगे? यू विल सिंपली सिमिलरली एक और ट्राइंगल लेंगे जहां पे इन दो को इक्वल कट करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन प्लॉट करेंगे. सो बट वी विल नॉट डू दैट इन डीप. हम डायरेक्टली लिख देते हैं. सिमिलरली जो तीसरा रेशियो है वो BC अपॉन EF विल बी इक्वल टू AC अपॉन DF. सिमिलरली इट विल डू द जॉब. सिमिलरली से बेसिकली यू वांट टू से, जैसे यहां आपने कंस्ट्रक्शन किया है, एक और कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप ऐसे इधर इस वाली साइड पे. फिर आप AB के इक्वल यहां कट करेंगे, BC के इक्वल यहां कट करेंगे. सो आपके पास एक ये रिजल्ट निकल जाएगा. सो इस रिजल्ट को डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं. सिमिलरली दिस. सो AB अपॉन DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF. This is our desired result, hence proved. So it becomes a theorem. ये थ्योरम भी पूछी जा सकती है, बट वी विल यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली. अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल में
इफ कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो ट्राइंगल्स क्या होंगे आपकी, सिमिलर होंगे. आफ्टर रीचिंग जस्ट हियर यू विल सिंपली मेंशन एंगल्स इक्वल थे, साइड्स प्रोपोर्शनेट थी, सो बाय दीज टू इक्वेशन यू कैन से दैट ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. ये पार्ट तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, बट यू नीड टू मेंशन इट बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि आपको ऐसा लिख के दिखाना है. सो आई गेस दिस इज डन. लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू. साइड्स आपको प्रोपोर्शनलिटी में प्रूव करनी थी, एंगल्स आपको इक्वल गिवन थे. आपने कंस्ट्रक्शन किया, दो को इक्वल साइड्स को कट किया, आपने दोनों ट्राइंगल्स लिया. ट्राइंगल्स का यूज करते हुए आई हैव इरेज दैट पार्ट जहां पे आपने कांग्रुएंसी प्रूव करके दिखाया है. यूजिंग कांग्रुएंसी ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल. सो एंगल इक्वल होने से हमने क्या कहा, हमने कहा दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो साइड्स विल बी पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के, बीइंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. इस कंडीशन का हमने यूज किया बीपीटी बनाने के लिए बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर बीपीटी. वन साइड इज पैरेलल है तो हमने क्या किया, अदर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शनलिटी में हमने फिर यूज किया एक स्मॉल सी थ्योरम का जिसमें हमने रेसिप्रोकेट +1 अगेन रेसिप्रोकेटिंग dp अपॉन de, दिस पार्ट अपॉन होल साइड वाली थ्योरम का डायरेक्ट यूज किया. फिर हमने वैल्यू वापस पुट कर दिया एंड वी गोट आवर डिजायर्ड रिजल्ट. So you may pause the video to write it down. From here, this thing is very clear that if only angles are equal, so your sides will be in proportion by itself. तो यहाँ से हमें अब एक ही कंडीशन निकालनी है. You may show only angle और angle भी you don't need to prove the three angles. You know, if two angles are equal, then third will be by default equal. Why? Sum of angles is 180 degree. So if you have two equal angles in two triangles, then triangles will be similar triangles. So this is the result from here. Now moving towards our next question. Now in theorem 6.4, यहाँ पे आपको reverse given है. In previous question we were given angles were equal. We have shown corresponding sides were in proportion, so triangles were similar and we called that criteria angle criteria. आपने angles equal given थे. यहाँ पे आपको side proportional में given है, आपको prove करना है that their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. So basically what we are doing here, we are using only one condition to find the other condition and hence getting our similarity concept clear. So let's start the question. Again I need to consider two triangles. So first triangle is triangle ABC. एक ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं ABC. अनदर ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल DEF. सो यहाँ पे गिवन है आपको, गिवन इज दैट sides are in proportion, means AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. जो ट्राइंगल आपने पहले लिया, all the sides from that triangle will be taken first. To prove करना क्या है आपको, all the angles will be equal, ये आपको prove करना है. एंगल A एंगल D के इक्वल आएगा, एंगल B will be equal to एंगल E and angle C will become equal to angle F. So again let's do the construction. Similarly we have done in previous version. BC AB के इक्वल हमने एक लाइन कट कर दिया है हमने, let's name it P and Q. So you will mention the part previously. Construct AB is equal to DP and AC is equal to DQ. This is the construction. Let's take the proof. We will take the triangles in triangle DPQ and triangle DEF. दो ट्राइंगल्स हम लेते हैं. सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हमने इन लास्ट क्वेश्चन वी यूज योर बीपीटी. हियर आई विल यूज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कैसे यूज करेंगे, व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन टू यू इज
ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इन दोनों पार्ट्स को मैंने उठाया है, बट हमने कट किसके इक्वल किया है, ए बी को डी पी के इक्वल। सो लेट्स पुट दैट विच एम्प्लाइज दैट ए बी को पुट कर दो आप इक्वल डी पी के, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह पे क्या पुट कर दो आप, डी क्यू। इन दोनों कंस्ट्रक्शन का हमने यूज किया है। यहाँ पे डीपी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है आपके, ए सी को पुट कर दिया है डी क्यू अपॉन डी एफ बी एज इट इज। डी एफ इस बेसिस पे गो फॉर द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने आपको क्या कहा था, इफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देन द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये दो साइड्स अगर प्रोपोर्शन है इन दो ट्राइंगल्स में, सो इनकी जो थर्ड लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। सो यहां से देखिए पी क्यू विच एम्प्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ आया आपको, आपने कैसे किया, पी क्यू को आपने ई एफ के पैरेलल निकाल दिया है, डीपी अपॉन डीई डी क्यू अपॉन डी एफ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है यही चीज। लुक वी हैव डन 2 क्वेश्चंस जहां पे हमने क्या किया था, +1 किया था और ये प्रूव किया था। तो यहाँ पे वी विल नॉट गो इन दैट डीप, हम उन रिजल्ट्स को वी आर यूजिंग हियर directly. That's why I said every question is important, every video is as much as important. So go through these videos and do all the question by yourself, so it will be more clear. Converse of BPT से आपने ये चीज निकाल दिया। Moving next, अब इस चीज से if sides are parallel, so corresponding angles will be equal. So from here angle will be equal. From here angle P will be equal to angle E and angle Q will be equal to angle F. I hope you get it. कैसे हो गया, पैरेलल लाइन है, ट्रांसेक्टिंग लाइन आपकी बन गई है DE, सो ये दोनों बन रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग। इधर से these two are your corresponding, so you may mention it also. Now P इक्वल आ गया P के, Q इक्वल आया आपके पास एंगल F के। What you will do next here? Now you will check condition congruency. Congruency के लिए हम क्या करें, हमें अब ABC ट्राइंगल को DPQ के congruent प्रूव करना है। But before that, the previous question we done right now was आपने प्रूव किया था एंगल एंगल congruency को, where you were having 2 angles equal, third can be proved, so we will directly use angle angle congruency. हमने कहा था if 2 angles are equal, so हमने sides क्या कहा था, proportion में, so we will use that result here in triangle DPQ, इन्हीं दोनों triangles में, so no need to mention again. If these two are equal, so by angle angle similarity criteria कह लीजिए, concept you can say, so I use here the word criteria. एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ने क्या कहा था, अभी अभी जो क्वेश्चन किया है हमने, इफ 2 एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। सो आप लिख दीजिए प्रोपोर्शनलिटी को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टेक द ट्राइंगल DPQ, DP अपॉन द अदर ट्राइंगल इज योर ट्राइंगल DEF, तो यहां से साइड निकली DE, इधर से आपकी साइड निकली है DQ, छोटी ट्राइंगल से, बड़ी ट्राइंगल से साइड है आपके पास DF, और तीसरी साइड आपके पास कौन सी है, छोटी ट्राइंगल से PQ, एंड फ्रॉम लार्जर ट्राइंगल दिस इज EF. ओके, या नाउ व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट वी हैव गॉट, लेट्स कंपेयर द स्टफ। DP किसके इक्वल था आपके पास, वन मोर स्टफ इज देयर, लेट्स मेंशन इट, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या मेंशन करें, DP किसके इक्वल है आपके पास, DP वाज इक्वल टू AB, सो गिवन था ये AB अपॉन DE इज इक्वल टू DQ किसके इक्वल है आपके पास, AC अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF।
यहाँ पे हम ट्रायंगल, इस कंडीशन को हम इक्वेशन 1 कहते हैं। क्या क्या मैंने वापस पुट कर दिया है, ए बी को वापस पुट कर दिया है और आपका ए सी को भी मैंने वापस पुट कर दिया। सो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस वाज योर गिवन, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 और जस्ट नेम इट 1, नेम इट 2। नाउ यू विल राइट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट डिड यू नोटिस? देखो ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल, नो इश्यूज। बी सी है नहीं तो वी विल नॉट कंसिडर अबाउट दिस, लेट्स लीव इट। ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, दो पार्ट्स इक्वल हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इट मस्ट बी इक्वल, मस्ट केस आ गया आपके पास, ओनली देन दिस थ्री कैन बी इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सिमिलरली हियर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 these two should be equal। सो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे? You will mention, I will get some space on the board, I will remove this part। So from equation 1 and 2, what did you get? You got PQ, BC upon EF is equal to PQ upon EF। These two fractions should be equal, your denominator is equal, so numerator should also be equal। So यहाँ से आपने क्या लिख दिया? BC is equal to PQ। I hope you get it। न्यूमरेटर भी इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल है तो। अगर BC आपका PQ के इक्वल आ गया है, BC is equal to PQ, so it means from here this thing is very clear that triangle ABC और triangle DPQ क्या हो गई? Congruent। ABC is congruent to triangle DPQ। कौन सी congruency लगी? साइड साइड साइड, ये इसके इक्वल थी छोटी सी DP, ये इसके, ये हमने कट किया था, थर्ड साइड हमने निकाल दिया है। सो फ्रॉम दिस, by concept of congruency, all the sides are equal है तो angles will be also equal। So from here you will write the direct result that all your corresponding angles will be equal। Angle A will be equal to angle D, angle B will be equal to angle E, and angle C is equal to angle F। It's a bit lengthy but concept is very easy। सिर्फ आपने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया कांग्रुएंसी का, ये आपको समझ आया कैसे हुई ट्रायंगल्स। दो साइड्स ऑलरेडी आपने कंस्ट्रक्शन से इक्वल थी, थर्ड साइड मैंने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का यूज करते हुए इक्वल प्रूव कर दिया। सो बाय यूजिंग दैट ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, सो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स शुड आल्सो बी इक्वल। यू मे मेंशन इट इज बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। So hence is your result। Using this you can say triangles are similar, hence triangle ABC is similar to triangle DEF, and this condition is known as side 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 similarity criteria। तीनों साइड्स आपके पास यहाँ पे गिवन थी कि वो प्रोपोर्शन में है। तो you may get one doubt, some students maybe, proportion, the word proportion means if I say proportion or I say ratios are equal, both have the same meaning। आप यहाँ पे कह सकते हैं उनकी रेशियो इक्वल है और यूज द वर्ड प्रोपोर्शनल डायरेक्टली। सो गो थ्रू द वीडियो, do it by yourself। I hope you get it। If you don't get it or you get it, just please let me know in comment section। So, and if you have any suggestion, you are always welcome, go for it। Pause the video to write it down and moving towards one more property। So this is your third property। If one angle of a triangle is equal to the other triangle, then two sides including these angles are proportional and then two triangles are similar। अब आपको क्या गिवन है? एक एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में and the sides including that angles are in proportion। So what is the case here? You have the two triangles, triangle ABC and triangle DEF। दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास फिर से। नाउ कंडीशन इज गिवन टू यू दैट दिस एंगल इज इक्वल, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, दिस इज वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द अदर, दिस इज वन कंडीशन, एंड इट इज कनेक्टेड बाय एंड, द सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो गिवन।
the sides including the angles are in proportion. Means this angle is included by two sides. साइड AB एंड AC से मिलकर बना है, इधर से DE से और DF से. सो दीज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. सो गिवन क्या है आपको? गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF. सो दिस थिंग इज गिवन. टू प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. अगेन वी विल डू द कंस्ट्रक्शन पार्ट. थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, वही सेम कंस्ट्रक्शन इन ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज. लुक, दीज आर द प्रॉपर्टीज, वी विल यूज द रिजल्ट, बट दीज आर थ्योरम एज वेल. सो आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में यू मे बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड देन यू विल डू दिस कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दिस वर्क दैट वी हैव डन, एंड इन क्वेश्चंस वी विल यूज दिस रिजल्ट. सो आई थिंक आई एम क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे. यहाँ से दिस इज योर PQ. कंस्ट्रक्शन आपने किया है AB, कट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ. सो नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल डू द अगेन सेम प्रोसेस कि आपने क्या किया था, AB अपॉन इन दोनों कंडीशंस का यूज हमने कैसे किया था? हमने BPT का यूज करके हमने प्रूव क्या किया था? दैट PQ वाज पैरेलल टू EF. हमने प्रूव किया था. सो यू विल डू फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. यहां से मैं डायरेक्टली लिख रही हूं बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ BPT. You can't write it like this in the exam. You need to do that part we have done in previous question. कीजिए, डायरेक्ट यूज कर रही हूं मैं. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने किया था वही चीज PQ को हमने EF के पैरेलल प्रूव किया था यूजिंग दिस कंडीशन. किया है हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में, आप पीछे वीडियो में भी देख लेना. PQ EF के पैरेलल प्रूव हो गया था. देन हमने प्रूव किया था ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle DPQ. if you remember, if you not then you may go back. angle criteria हमने लगाया था. so from here angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. DEF. ओके, तो वर्क इज डन. आई गेस साइड्स आपने यहाँ पे दो साइड्स थी, उनकी हेल्प से आपने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ को हमने प्रूव कर दिया था कॉन्ग्रुएंट. दिस एंगल्स आर इक्वल. सो फर्स्ट कंडीशन, एंगल कंडीशन क्या कहती है आपको? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. This stuff has been proved earlier in your first property itself. So if you have two angles equal, you may say the triangles are similar. If you have three side proportion, you may say triangles are similar. And this is the third case, one angle and the other two side, and this property is known as side angle side similarity criteria. जैसे आपके पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज थे, कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉपर्टीज थी, सो यहाँ पे आपके पास सिमिलरिटी. सो टुडे वी डिस्कस्ड थ्री प्रॉपर्टीज. एंगल इज इनफ. इफ यू वांट टू से यू कैन से एंगल सिमिलरिटी, दैट इज आल्सो करेक्ट. साइड एंगल साइड, थर्ड वन, एंड साइड जिसमें आपके पास साइड प्रोपोर्शन थी. दिस इज द केस फॉर दिस. एंड एंगल जो सबसे पहले हमने किया था. So go through the video, do it by yourself. These are very important result, moreover important questions also. So go through it, pause the video to write it down, and do let me know in comment section, and do it with your own hand so that you may get what exactly we are doing. That's all for today, students. Have a good day. Thank you all.